So very good evening, all the participants. Today we'll start with section 26 onwards. So section 26, what it says? Section 26 says that application for avoidance of transactions not to affect proceedings. That means the avoidance transactions applications are separate proceedings. Even if you have filed an application for avoidance transactions under section 43, 45, 50, 66, 69, it will not affect the CIRP process. So both things will run concurrently. And there could be a case where a resolution plan has been passed or resolution plan has been implemented. The company is again running successfully, but the decision on PUFE transactions has not come as yet, right? So these are separate proceedings and they shall not affect the proceedings of the CIRP. This is the meaning of section 26, right? Now section 27. Section 27 talks of the replacement of the RP by committee of creditors. We had seen section 22 also. So section 22, what it referred to? Section 22 referred to the appointment of the RP. So in the first meeting, the committee shall decide by a majority vote of not less than 66% whether to retain the existing IRP or to replace him with a new IRP, right? Now, section 27. Section 27 talks of a different scenario where the CIRP is going on. Some meetings have already taken place and now they want to replace the RP, not the IRP, right? So it could be replaced anytime, where at any time during the CIRP process, the committee of creditors is of the opinion that a resolution professional appointed under section 22 is required to be replaced. It may replace him with another resolution professional in the manner provided under this section, right? So committee of creditors may at a meeting. So at a meeting is also important. By a vote of 66% of the voting share, resolve to replace the RP appointed under section 22 with another RP subject to written consent from the proposed resolution professional in the specified form, right? So committee shall forward the name to the A and adjudicating authority shall forward the name to the board for its confirmation, and a resolution professional shall be appointed in the same manner as laid down in section 16. Where any disciplinary proceedings are pending against the proposed RP, the resolution professional appointed under section 22 shall continue till the appointment of another resolution professional under this section. So section 27, right? Very simple. So RP may be replaced anytime. Now another question here. Different percentages have been prescribed for replacement of insolvency professionals in the IBC, right? Please listen carefully to this question. Different percentages have been prescribed or specified for replacement of insolvency professionals under IBC. What is the minimum percentage specified for this purpose? Minimum percentage. 66. No, 66 is wrong. 66%. 66 is wrong. So for other processes, For 51%. AR, for Less AR than कितना है? AR के लिए अगर रिकमेंड करना है रिप्लेसमेंट कितना परसेंटेज है? 10%. So can you please repeat the question? The question is that different percentages have been specified under IBC for replacement of insolvency professionals. So what is the minimum percentage specified in this behalf? Okay. So insolvency professionals. हाँ, इसीलिए वर्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल दे दिया ना उसने. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल तो कोई भी हो सकता है.
IRP भी हो Yes, सकता है, RP भी हो सकता है, AR भी हो सकता है, फैसिलिटेटर भी हो सकता है। yes, sir. क्यों काजल जी? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये सर, ये सर? सर ये 10% कहाँ लिखा है? 10% तो कहीं वो पे AR के लिए है ना सर, 10%। AR के लिए, हाँ, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। 16A, रेगुलेशन 16A, सब रेगुलेशन 3A। अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में सवाल आया, मैं कहा ये सवाल पूछा जा सकता है। एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे ही तो सवाल बनाता है, वो कुछ भी बना देता है। देखो ये 16A 3A क्या लिखा, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इन द क्लास रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 10% वोटिंग शेयर may seek replacement of the AR with an insolvency professional of their choice by making request to the IRP or RP, who shall circulate such request to the creditors in that class and announce a voting window open for at least 24 hours. मतलब सर ER को रिप्लेस करना है तो 10% अप्रूवल ऑफ COC इज रिक्वायर्ड। COC की बात नहीं है, हाँ फाइनेंशियल हाँ। क्रेडिटर्स है ना, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इन ए क्लास भाई, AR is a AR is a representative of class of creditors. ओके So सर if हाँ। the class of creditors they want to replace it, so they, if they represent not less than 10%, they may seek replacement of the AR. हम्म। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा वो अलग बात है, बट परसेंटेज तो है ना यहाँ 10%। हाँ सर हाँ सर। Yes, sir. अब ऐसे ही वहां पर क्या है, फैसिलिटेटर में मोर देन 50%। तो ये सब भी बातें ध्यान में रखनी है, वो इसी टाइप से अटकाएगा आपको कहीं ना कहीं। चलिए 27 पर। सर ये पढ़ा तो है बट इस तरीके से सोचा ही नहीं। भाई यही तो सोच रहा है ना, अब मैं कैसे सोच लेता हूं, मेरे दिमाग में बैठे बैठे IBC चलती रहती है। अब वो इस लेवल पे आ गया है एक्चुअली ना, वो घुमाता है भाई, उसको पता है बाकी तो सब रट के आए हुए हैं, है कि नहीं? तो अब वो और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। नहीं सर, नहीं सर। चलिए 28, अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर सर्टेन एक्शंस। तो इसी तरह से आप खुद भी सवाल बना सकते हैं अपने हिसाब से, वो 50% वाला भी सवाल बना लेना इस तरह से जो फैसिलिटेटर में है। अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर सर्टेन एक्शंस, notwithstanding anything contained in any other law for the timing in force, the resolution professional during the CIRP process shall not take any of the following actions without the prior approval। देखो prior approval इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। Raising any interim finance in excess of the amount as may be decided by the committee of creditors in their meeting. So COC may decide that okay, up to this percent, up to this much amount you can raise, but beyond this you have to seek our prior approval. ठीक है, in excess of the amount as may be decided. So COC will decide that okay. But here there is one another question. ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि whether an IRP can raise interim finance, IRP interim finance raise कर सकता है या नहीं कर सकता? यस। यस सर। Yes. So IRP can also raise, है ना? जब IRP है उस टाइम तो कोई COC है नहीं, है ना? But naturally that will also be, the cost will subject to ratification by COC. IRP नोट हाँ आरपी। IRP से आप IRP की बात कर रहे हो सर? IRP, हाँ IRP कैन ऑल्सो रेज इंटरम फाइनेंस, IRP के बारे में दिया हुआ ना, ये देखिए सेक्शन आपको मिल जाएगा, ड्यूटीज ऑफ IRP और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द कॉर्पोरेटर, सेक्शन 22C। सेक्शन 22C क्या बोलता है, टू रेज इंटरम फाइनेंस provided that no security interest shall be created over any encumbered property of the corporate debtor without the prior consent of the creditors whose debt is secured over such encumbered property, provided that no prior consent of the creditor
shall be required where the value of such a property is not less than the amount equivalent to twice the amount of the debt. ठीक है, तो IRP कैन ऑल्सो रेज इंटरिम फाइनेंस, बट वहां पर ये कंडीशन लागू नहीं होगी क्योंकि वहां तो COC है ही नहीं, है ना. बट once COC is formed, so COC will decide that okay, up to this much you can raise on your own, but beyond this you have to ask us. Create any security interest over the assets of the corporate debtor. So he can create any security interest over the assets of the corporate debtor. अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है, आपको क्या लगता है कि यहां पर कोई डिस्क्रिपेंसी है इस पॉइंट में? कुछ यहां गड़बड़ लग रही है आपको? क्रिएट एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट ओवर द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, क्योंकि सेक्शन 14 में तो हमने कुछ और ही पढ़ा था. सेक्शन 14 में क्या पढ़ा था हमने? सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं कर सकता सिक्योरिटी. तो सेक्शन 14 बोलता है ट्रांसफरिंग, एनकम्बरिंग, अलाइनेटिंग और डिस्पोजिंग ऑफ बाय द कॉर्पोरेट डेटर एनी ऑफ इट्स एसेट्स और एनी लीगल राइट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट देयरिन. तो ये सब नहीं कर सकता. ठीक है, और यहां बोल रहा है कर सकता सर. वो आईपी कर रहा है, IRP कर रहा है सर, ये RP कर रहा है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड. तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ RP कर रहा है ये, है ना. CD नहीं कर रहा, CD के ऊपर बाहर है, RP कर सकता. ठीक है, क्रिएट एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट ओवर द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, लेकिन वो भी किसकी प्रायर अप्रूवल से? COC की प्रायर, अपने आप नहीं कर सकता. ठीक है. चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर of the corporate debtor, including by way of issuance of additional securities, creating a new class of securities, or buyback or redemption of issued securities in case the corporate debtor is a company. ठीक है, सारी चीजें, redemption of issued securities, buyback, everything, for everything COC approval is required. Record any change in the ownership interest of the corporate debtor. So if ownership interest is changing, then also COC approval is required. Give instructions to financial institutions maintaining accounts of the corporate debtor for a debit transaction from any such accounts in excess of the amount as may be decided by the COC in their meeting. ठीक है, डेबिट के लिए कि भैया इस 5 लाख तक डेबिट अलाउ कर देना, उसके ऊपर COC का अप्रूवल. ठीक है. Undertake any related party transactions. So even related party transactions are not barred during CIRP, but COC approval is required. और इसमें कोई minimum threshold नहीं है. Amend any constitutional documents of the corporate debtor. Delegate its authority to any other person. Dispose of or permit the disposal of shares of any shareholder of the corporate debtor or their nominees to third parties. Make any change in the management of the corporate debtor or its subsidiary. Transfer rights or financial debts or operational debts under material contracts otherwise than in the ordinary course of business. Make changes in the appointment or terms of contract of such personnel as specified by the COC. Make changes in the appointment or terms of contract of statutory auditors or internal auditors of the corporate debtor. ठीक. The resolution tribunal shall convene a meeting of the committee of creditors and seek the vote of the creditors prior to taking any of the actions under subsection 1. No action under subsection 1 shall be approved by the committee of creditors unless approved by vote of 66% of the voting share. ठीक है. Where any action under subsection 1 is taken without seeking, it shall be void. And committee may report the actions of the RP to the board. ठीक है. अगर RP COC के अप्रूवल के बिना इनमें से कोई भी एक्शन ले लेता है तो COC क्या करेगी? बोर्ड को रिपोर्ट करेगी. बोर्ड मतलब IBB. ठीक है. तो सेक्शन 28 क्लियर है. Yes. सेक्शन 29 प्रेपरेशन Sir. ऑफ इंफॉर्मेशन. यस प्लीज. पूछो सर एक क्वेश्चन सर. Preparation of information memorandum. The resolution tribunal shall prepare an information memorandum in such form and manner containing such relevant information as may be specified by the board for formulating a resolution plan. और इसको हमें पढ़ना है रेगुलेशन नंबर 36 के साथ. The resolution tribunal shall provide to the resolution applicant access to all relevant information
भाई इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है? रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, ठीक है ना? तो द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल प्रोवाइड टू द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट access to all relevant information in physical and electronic form, provided such resolution applicant undertakes to comply with the provisions of law for the time being in force relating to confidentiality and insider trading, to protect any intellectual property of the corporate data it may have access to, and not to share relevant information with third parties unless clauses A and B of this subsection are complied. क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट भी अपने कंसल्टेंट को दिखाएगा, है ना? तो इसका मतलब यह है कि उससे भी कॉन्फिडेंशियलिटी और इनसाइडर ट्रेडिंग वाली अंडरटेकिंग ले लेगा, ठीक है? फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन, relevant information means the information required by the resolution applicant to make the resolution plan for the corporate data, which shall include the financial position of the corporate data, all information related to disputes by or against the corporate data, and any other matter pertaining to the corporate data as may be specified. ठीक है, तो इसके बाद में हम इसके साथ पढ़ लेते हैं रेगुलेशन नंबर 36। रेगुलेशन 36 क्या बोलता है? ये है रेगुलेशन नंबर 36। क्या कहता है? सब्जेक्ट टू सब रेगुलेशन 4, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल सबमिट द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो कैसे देना है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, टू ईच मेंबर ऑफ द कमिटी on or before 95th day from the insolvency commencement date, ठीक है? The information memorandum shall highlight the key selling propositions। अब देखो ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या है? बेसिकली रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के लिए बनाया गया है, तो उसमें बताएंगे कि भैया क्या क्या खासियत है इस कंपनी में, है ना? तो इट शैल हाईलाइट द की सेलिंग प्रोपोजिशंस एंड कंटेन ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन which serves as a comprehensive document conveying significant information about the corporate data, including its operations, financial statements to the prospective resolution applicant, and shall contain the following details of the corporate data। क्या क्या डिटेल्स है? Assets and liabilities, including contingent liabilities, with such description as on the solvency commencement date as are generally necessary for ascertaining their values, ठीक है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज में ऐसा नहीं खाली फिक्स्ड एसेट्स लिख देना, आपको डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन भी कैसा देना है? ताकि उससे उसकी वैल्यू पता चल सके। अब जैसे कार है, तो कार के बारे में आप क्या लिखोगे? डेट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, आइडेंटिफिकेशन नंबर कितना है, डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी है, बुक वैल्यू कितनी है, और अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स है लैंड वगैरह तो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड एनी अदर रिलेवेंट डिटेल्स, ठीक है? क्योंकि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट तो उससे आइडिया लेगा ना। अगर आपने खाली बैलेंस शीट में लिख दिया कार, तो कार से तो उसको आइडिया नहीं लगेगा क्या कार है, कौन सी कार है ना? ये सारी चीजें आपको किसी भी एसेट की, जैसे मशीनरी है, जो भी है, प्लांट एंड मशीनरी, पूरा ये डिस्क्रिप्शन आपको देना है, ठीक है? पर्पस क्या है? फॉर असर्टेनिंग देयर वैल्यूज। उसके बाद में लेटेस्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप ये देखो कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग लिखा है और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग लिखा है। जैसे मान लीजिए अप्रैल है ना, तो अप्रैल में हो सकता है आपका अकाउंट्स अभी ऑडिट ना हुए हो, या मई चल रहा तो मई में मान लो नहीं हुए, तो वो क्या करेगा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देगा और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा फॉर द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स एंड प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर मेड अप टू a date not earlier than 14 days from the date of the application, ठीक है? A list of creditors containing the names of creditors, the amounts claimed by them, the amount of their claims admitted, and the security interest, if any, in respect of such claims, ठीक है? लिस्ट देनी है पूरी क्रेडिटर्स की, ठीक है? उन्होंने कितना अमाउंट क्लेम किया है, एडमिट कितना हुआ है, और सिक्योरिटी इंटरेस्ट कितना। Particulars of a debt due from or to the corporate debtor with respect to related parties. Details of guarantees that have been given in relation to the debts of the corporate debtor by other persons, specifying which of the guarantors is a related party. Names and addresses of the members or partners holding at least 1% stake in the corporate debtor along with the size of the stake, ठीक है?
details of all material litigation and ongoing investigation or proceeding initiated by government and statutory authorities. देखिए क्या लिखा है, तीन चीजें हैं. सबसे पहली बात लिटिगेशन. अगर लिटिगेशन चल रहा है तो मेटीरियल अगर है तो डिटेल देनी है. ठीक है, छोटे मोटे केस की जरूरत नहीं. ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या कोई प्रोसीडिंग है इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज. ऐसा भी हो सकता है ना, कोई ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोई सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या कोई प्रोसीडिंग चल रही है ना, तो उसकी भी डिटेल्स आपको देनी. उस केस में जरूरी नहीं कि लिटिगेशन अभी हुआ हो, बट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या प्रोसीडिंग चल रही है. ठीक है. नंबर ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा टुवर्ड्स देम. ठीक है. उसके बाद में कंपनी ओवरव्यू इंक्लूडिंग स्नैपशॉट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस, की कॉन्ट्रैक्ट्स, की इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स. मतलब अब कंपनी को एक किस्म से वो पिच कर रहा है. ठीक है ना, किसको, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. तो उसकी जो भी खासियत है वो बताएगा कि भाई हमारे पास ये बिजनेस परफॉर्मेंस है, ये हमारे पास की कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, है ना, ये की इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स हैं, and other factors which bring out the value as a going concern over and above the assets of the corporate data such as brought forward losses in the income tax returns. हमारा कोई देखो जी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, आप कंपनी लोगे तो आपको ये भी कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा. इनपुट क्रेडिट हमारा पड़ा हुआ है, की एम्प्लॉइज हमारे पास हैं, की कस्टमर्स हैं, सप्लाई चेन लिंकेजेस हैं, यूटिलिटी कनेक्शंस हैं, है ना, भाई पावर का कनेक्शन ऑलरेडी है हमारे पास, अदर प्री एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज. तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर दो. डिटेल्स ऑफ बिजनेस एवोल्यूशन, ये बिजनेस इवॉल्व कैसे हुआ, इंडस्ट्री का क्या ओवरव्यू है, एंड की ग्रोथ ड्राइवर्स इन केस ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटा हैविंग बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सीडिंग 100 करोड़ रुपीस एज पर द लास्ट अवेलेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है. ये कब देना है, जब आपकी टोटल बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सीडिंग 100 करोड़. फेयर वैल्यू देनी है आपको. अब आप ध्यान रखिए इसमें क्या हो रहा है कि लिक्विडेशन वैल्यू नहीं दे रही है, फेयर वैल्यू की बात कर रहे हैं. और फेयर वैल्यू भी हो सकता है कि सीओसी कहे भाई देने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड दैट द कमिटी में डिसाइड नॉट टू डिस्क्लोज द फेयर वैल्यू इफ फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इट कंसिडर सच नॉन डिस्क्लोजर टू बी बेनिफिशियल फॉर द रेजोल्यूशन प्रोसेस. ठीक है. नॉर्मली फेयर वैल्यू देंगे, अगर सीओसी डिसाइड करती है कि भाई देने की जरूरत नहीं है तो फिर नहीं देंगे. Other information which the resolution personnel deems relevant to the committee. A member of the committee may request the RP for further information of the nature described in this regulation. ठीक है. And the क्योंकि ये COC members के लिए भी बना रहा है ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इलेक्ट्रॉनिक दे दिया ना इसको. अभी आप देखो कि इसने इसको 95 डेज में दे दिया है. ठीक है. अभी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को नहीं दिया तो पहले प्रसाद किसको मिल रहा है, सीओसी मेंबर को, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहे सीओसी मेंबर तो वो भी ले सकता है. ए मेंबर ऑफ द कमिटी मे रिक्वेस्ट द आरपी फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन ऑफ द नेचर डिस्क्राइब्ड इन दिस रेगुलेशन एंड द रेजोल्यूशन पर्सनल शैल प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन टू ऑल मेंबर्स. ठीक है. मांगी एक ने, दे रहे सबको within reasonable time if such information has a bearing on the resolution plan. ठीक है. The creditor shall provide to the resolution personnel the latest financial statements and other relevant financial information of the corporate data available with them. ठीक है. इसका क्या मतलब है कि जो क्रेडिटर्स है, हो सकता है बैंकर्स के पास कोई लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो या कोई रेलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, तो वो भी क्या करेंगे, वो आरपी को इंफॉर्मेशन देंगे. द रेजोल्यूशन पर्सनल शैल शेयर द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आफ्टर रिसीविंग एन अंडरटेकिंग फ्रॉम ए मेंबर ऑफ द कमिटी टू द इफेक्ट दैट सच मेंबर और रेजोल्यूशन एप्लीकेंट शैल मेंटेन confidentiality of the information and shall not use such information to cause an undue gain or undue loss to itself or any other person and comply with the requirements under subsection 2 of section 29. ठीक है. तो ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी तैयार हो गया हमारा.
अब हम आगे चलते हैं, दोबारा आपने सेक्शन 29, अब 29A पढ़ते हैं। 29A क्या बोलता है? 29A बोलता है कि देयर मे बी सर्टेन पर्सन्स हु आर नॉट एलिजिबल। कौन कौन एलिजिबल नहीं है, जो रेजोल्यूशन प्लान नहीं दे सकते? ये 29A में लिखा है। ए पर्सन, सबसे पहली बात, ए पर्सन लिखा है, ठीक है। और पर्सन कहाँ स्पेसिफाइड है आपका? पर्सन आपको दिया हुआ है सेक्शन 3 में दे रखा Yes, sir. है ना। Three में। तो पर्सन में कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, तो कोई भी रेजोल्यूशन प्लान दे सकता है ना। ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट पर्सन नहीं देना है, कोई भी दे सकता 23, sir. Hmm. है। हाँ, तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 23. 23, ठीक है ना। तो जो भी पर्सन में लिखे हुए हैं ये सारे लोग रेजोल्यूशन प्लान दे सकते। इफ सच पर्सन और एनी अदर पर्सन एक्टिंग जॉइंटली और इन कंसर्ट। अब जॉइंटली और इन कंसर्ट का क्या मतलब है? जॉइंटली और इन कंसर्ट का मतलब ये है कि विद ए कॉमन इंटेंशन, ठीक है। वैसे सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेकओवर कोड रेगुलेशंस में डिफाइंड है, लेकिन मतलब इसका यही है। विद सच पर्सन इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। सबसे पहले अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैव स्टार्टेड बट दे हैव नॉट येट कल्मिनेटेड। willful defaulter in accordance with RBI guidelines at the time of submission of the resolution plan। तो जब रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर रहे हैं तो एक अकाउंट है किसका? ये जो प्लान जो आ रहे जो सबमिट कर रहा है रेजोल्यूशन प्लान, उसका अकाउंट है, या किसी ऐसे कॉर्पोरेट डेटर का अकाउंट है जो कि उसकी मैनेजमेंट या कंट्रोल में है, ठीक है। रामलाल एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, रामलाल ने रेजोल्यूशन प्लान देना है, तो या तो रामलाल का अकाउंट खुद एनपीए है, या रामलाल एक कंपनी को कंट्रोल कर रहा है और उस कंपनी का अकाउंट एनपीए, ठीक है। या फिर वो उसका प्रमोटर है, क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और वो जो अकाउंट है वो क्या है? एनपीए हो चुका है इन अकॉर्डेंस विद गाइडलाइंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड एटलीस्ट ए पीरियड ऑफ 1 year हैज लैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ सच क्लासिफिकेशन। और ऐसा ही नहीं कि एनपीए हो चुका है, उसको एनपीए हुए भी 1 साल हो गया, टिल द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सीआईआरपी प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, ठीक है। तो आपको 1 साल कब से लेना है? फ्रॉम द डेट ऑफ सच क्लासिफिकेशन टिल द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सीआई। Provided that the person shall be eligible to submit a resolution plan if such person makes payment of all overdue amounts with interest thereon and charges relating to non-performing asset account before submission of resolution plan। लेकिन इसके पास अभी भी चांस है, एनपीए अकाउंट है लेकिन सारी पेमेंट कर दे, जितने भी ओवरड्यू अमाउंट्स हैं, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, चार्जेस, सारा, ठीक है, बिफोर सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, तो भी रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर सकते, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात यहां पर आ रही है 1 year की, ठीक है, कि एनपीए अकाउंट हो चुका और आपका 1 साल हो चुका। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसी कंपनीज को टेक ओवर करते रहते हैं, जैसे रामलाल है, रामलाल कंपनीज को टेक ओवर करता रहता है। जब कंपनीज को टेक ओवर करेगा तो क्या होगा? उनके एनपीए अकाउंट्स भी हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे वो, है ना। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सिचुएशन ये होगा, ये पीरियड माना जाएगा 3 years, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन 2। तो एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज वेयर ए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हैज एन अकाउंट or an account of a corporate debtor under the management or control of such person or of whom such person is a promoter and such account was acquired pursuant to a prior resolution plan, ठीक है। रामलाल ने पहले भी एक कंपनी खरीदी थी अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान में, तो फिर उस केस में ये जो क्लॉज है ये 3 साल
होगा इंस्टेड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, इट शेल नॉट अप्लाई टू सच रेजोल्यूशन एप्लीकेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ सच रेजोल्यूशन प्लान बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर दिस। ठीक है, क्लियर? सर इसके लिए कोई एग्जांपल दे सकते हैं? एग्जांपल दे के समझा एग्जाम्पल दिया ना मैंने, रामलाल जो है अब एबीसी लिमिटेड के लिए रेजोल्यूशन प्लान दे रहा है। ठीक हाँ है, जी। इज अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। उसने पहले भी एक कंपनी खरीदी थी पास्ट में, और वो ओके प्लान अप्रूव हो गया था। ओके। अब उस जब वो कभी कभी भी आप कंपनी खरीदते हो तो उसमें एनपीए अकाउंट्स भी होते हैं, है हाँ ना? जी। ये सब पुरानी कंपनियां ही होती हैं। आप समझ लो कबाड़ी है जैसे, है ना? हम्म, तो कबाड़ी जो भी खरीदता है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, उसको ठीक ठाक करके देते हैं वो। इसी तरह से जो कंपनी पुरानी खरीदी उसमें एनपीए अकाउंट्स होंगे। वो एनपीए अकाउंट्स किसके हो गए? रामलाल के हो गए अब, है ना? हम्म, रामलाल के कंट्रोल में वो कंपनी हो गई ना। तो अब ये- उस केस में 1 साल नहीं 3 साल माना जाएगा ये पीरियड। ये मतलब नॉर्मली तो 1 साल का पीरियड है ना? हम्म, यहां पर कितना है? 3 साल। क्योंकि कंपनी के जो एनपीए अकाउंट्स हैं उनको ठीक करने में भी तो टाइम लगेगा ना। आज आपने ओके कंपनी एक्वायर की तो ऐसे तो नहीं ना आज ही सारा चीज ठीक हो जाएंगी। इसलिए ठीक है इन्होंने सर। कहा कि 3 साल माना जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ सच रेजोल्यूशन। सर ये इसलिए क्योंकि ताकि ज्यादा एनपीएस हो गए उसके पास कलेक्ट। हाँ, हाँ बिल्कुल। भाई किसी भी चीज को स्टेबलाइज करने के लिए टाइम तो चाहिए ना। आप जब कंपनी एक्वायर करते हो तो क्या करते हो? कंपनी एक्वायर करते हो तो उसके अकाउंट्स भी तो आप ही के हो जाते हैं ना। यस सर। यस। एक आदमी ने विधवा से शादी कर ली तो उसके बच्चे किसके हो जाएंगे? उसके बच्चे भी तो इसी के हो जाएंगे ना। यही मतलब है। वो एनपी अकाउंट्स किसके हो गए? इसी के हो गए ना, रामलाल के। जब रामलाल के एनपी अकाउंट्स हो गए, अब उनको एनपीए से परफॉर्मिंग एसेट बनाएगा, टाइम तो लगेगा ना उसमें। इसीलिए यस 1 साल नहीं करके उसने 3 साल का पीरियड दिया। ये मतलब, ठीक है जी। यस सर। अब देखिए दूसरी बात क्या है? कई बार हो सकता है वो कोई बैंकर हो, जो रेजोल्यूशन प्लान दे रहा है वो कोई बैंकर हो। तो उस केस में वो क्या कहता है कि, और मान लीजिए बैंक है, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ठीक है। अब बैंक के पास क्या है? इस कंपनी के रिडीमेबल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे। अब वो रिडीमेबल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो जो है कन्वर्ट हो गए इक्विटी शेयर्स में। कब कन्वर्ट हुए? प्रायर टू द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। और वो कन्वर्ट होने की वजह से वो रिलेटेड पार्टी बन गया। भाई रिलेटेड पार्टी क्या है? डायरेक्टर होना चाहिए और मोर देन 2% शेयर कैपिटल होनी चाहिए। यही क्राइटेरिया ना, एक क्राइटेरिया ये है 524 में। तो वो ये कहता है कि अगर इस वजह से रिलेटेड पार्टी हो गया तो फिर ये रिलेटेड पार्टी में नहीं आएगा। हाँ सर, फिर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन जाएगा ये। हाँ, वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं हो। लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस क्लॉज shall apply to a resolution applicant where such applicant is a financial entity and is not a related party to the corporate debtor। ठीक है, और रिलेटेड पार्टी में क्या शामिल नहीं होगा ये भी इन्होंने दे रखा। पॉइंट डी क्या बोलता है? हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। कन्विक्शन हो गया, और कन्विक्शन क्या है? फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर अंडर एनी एक्ट स्पेसिफाइड अंडर द 12th शेड्यूल। तो 12th शेड्यूल में दे रखा। 12th शेड्यूल में बेसिकली इकोनॉमिक ऑफेंसेस। ठीक है, ये 12th शेड्यूल है, ये है 12th शेड्यूल। ठीक है, इसमें 26 दे रखे हैं, बेसिकली 25 एक्ट्स है और एक रेजिडरी दे रखा। तो मान लीजिए कोई फूड एंड न्यूट्रिशन एक्ट में पकड़ा गया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में, कस्टम्स में, है ना? ये सब चीजें, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, सिक इंडस्ट्रीज, बेनामी प्रॉपर्टीज, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, कंपटीशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इस सब में क्या है? 2 साल की अगर सजा हुई तो, ठीक है, तो फिर वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता। लेकिन कन्विक्शन हो गया, ठीक, या फिर इनके अलावा अगर कोई है तो 7 years, जो आईपीसी के, रेप मर्डर ये वो फलाना ढिमकाना,
उसमें 7 years और मोर under any law for the time, provided that this clause shall not apply to a person after the expiry of a period of 2 years from the date of his release from imprisonment. मान लीजिए जेल भी हो गई, ठीक है, 2 साल की सजा हो गई या 7 साल या ज्यादा की सजा हो गई और उसको छूटे हुए 2 साल हो गए, ठीक है, तो भी ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगी, तो फिर भी वो रेजोल्यूशन एप्लीकेट बन सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस क्लॉज शेल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू ए कनेक्टेड पर्सन रेफर टू इन क्लॉज 3 ऑफ एक्सप्लेनेशन 1। ये सिर्फ उस बंदे पर अप्लाई होगी, कनेक्टेड पर्सन पर अप्लाई नहीं होगी। अब कनेक्टेड पर्सन का क्या मतलब है वो हम देख लेंगे, ठीक है। पहले ई क्लॉज भी पढ़ लेते हैं और दोनों के साथ में फिर हम कनेक्टेड पर्सन को पढ़ लें। अगला लिखा है इज डिसक्वालिफाइड टू एक्ट एज ए डायरेक्टर अंडर द कंपनीज एक्ट, प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज शेल नॉट अप्लाई in relation to a connected person referred to in clause 3 of explanation 1। मतलब क्या है कि ये, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना ये इंडिविजुअल से है रिलेटेड, है ना, तो जेल वगैरह अगर हुई है तो उस इंडिविजुअल को या बार करोगे, उसकी जो होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, अगर उसमें किसी को जेल होगी तो उस पर बार नहीं होगा, समझ रहे हो आप, ये मतलब। और कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, ये एक्सप्लेनेशन 1 फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, और क्लॉज 3 की बात करता है ये। पहले तो कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कनेक्टेड पर्सन कौन है? जो या तो प्रोमोटर है या मैनेजमेंट या कंट्रोल में है या फिर प्रोस्पेक्टिव प्रमोटर है, वो प्रमोटर बनेगा या मैनेजमेंट या कंट्रोल संभालेगा, ठीक है, ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन। और थर्ड पॉइंट क्या है? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और रिलेटेड पार्टी ऑफ ए पर्सन रेफर टू इन क्लॉजेस 1 and 2, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि ये वाली क्लॉज इस पर अप्लाई नहीं होगी। कौन सी वाली? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और रिलेटेड पार्टी ऑफ ए पर्सन रेफर टू इन क्लॉज 1 and 2। मतलब ये कि अगर एक आदमी को जेल हो गई, रामलाल को हो गई जेल, तो रामलाल तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता, लेकिन रामलाल की कोई होल्डिंग कंपनी है ना, उसके किसी बंदे को जेल हो गई तो कंपनी को तो जेल होगी नहीं, है ना, उसके किसी रिलेटेड पार्टी को जेल हो गई तो उस केस में उस पर ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, रामलाल पर नहीं। अगर रामलाल खुद जेल में जाएगा तब होगी, या रामलाल खुद डिस्क्वालिफाइड है तो होगी। जो उसके कनेक्टेड पर्सन है, ये होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी के जो पर्सन है या उनकी जो रिलेटेड पार्टीज है उस पर यह क्लॉज अप्लाई नहीं होगी, मतलब ये है, ठीक है जी, क्योंकि ये पर्सनल नेचर की डिस्क्वालिफिकेशन। अगला देखते हैं, इज प्रोहिबिटेड बाय सेबी फ्रॉम ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज और एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट। प्रोहिबिटेड लिखा है, मतलब प्रोहिबिटरी ऑर्डर होना चाहिए, सिर्फ शो कॉज नोटिस हुआ उससे नहीं होगा। मान लो सेबी ने कोई शो कॉज नोटिस दे दिया, है ना, वो एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि भाई सेबी ने शो कॉज नोटिस दे दिया तो क्या ये डिस्क्वालिफाइड होगा? द आंसर इज नो। प्रोहिबिटेड ऑर्डर होना चाहिए कि you are hereby prohibited from trading in securities or accessing the securities market. Has been a promoter or in the management or control of a corporate data in which PUFE transaction has taken place. मतलब ये जो आदमी है, ये जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, ये प्रोमोटर है या मैनेजमेंट या कंट्रोल में है किसी सीडी के जिसमें PUFE ट्रांजेक्शन हुई और ऑर्डर भी हो गया। दोनों बातें, ऐसा नहीं कि खाली PUFE ट्रांजैक्शन हुई, PUFE ट्रांजैक्शन भी हुई और ऑर्डर भी हो गया, एंड लिखा है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, अब यहां पर फिर वही केस कि ये ऐसी कंपनी में हुई थी जो कंपनी इसने पहले एक्वायर की थी। भाई रामलाल कंपनियां खरीदता रहता है, इसने पहले भी एक कंपनी खरीदी थी, उस कंपनी में कोई PUFE ट्रांजैक्शन हुई थी लेकिन इसका कोई उसमें रोल नहीं था, तो फिर ये रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकता है। प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज शेल नॉट अप्लाई इफ PUFE ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस प्रायर टू द एक्विजिशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा बाय द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट pursuant to a resolution plan approved under this code। मतलब एक तो ये भी हो सकता है कि इसी कंपनी का रेजोल्यूशन प्लान पहले हुआ हो
या किसी दूसरी कंपनी का रेजोल्यूशन प्लान हुआ, दोनों बातें, ठीक है। या परसुएंट टू ए स्कीम और प्लान अप्रूव्ड बाय ए फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर और ए कोर्ट, कोई स्कीम अप्रूव हुई मर्जर की, एमलगमेशन की, एंड सच रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हैज नॉट अदरवाइज कंट्रीब्यूटेड टू द पीयूएफई ट्रांजैक्शन। मतलब पहले कोई किसी कंपनी का रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ था, उस कंपनी में कोई पीयूएफई ट्रांजैक्शन थी, लेकिन उस ट्रांजैक्शन में इसका कोई रोल नहीं था, तो फिर ये जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकता है, ये मतलब है, ठीक है। अगला पॉइंट, हैज एक्सिक्यूटेड ए गारंटी। किसने? ये जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, इसने गारंटी दी, किसके फेवर में? इन फेवर ऑफ ए क्रेडिटर in respect of a corporate debtor against which an application for insolvency resolution made by such creditor, देखो ये such creditor भी important है, has been admitted under this code and such guarantee has been invoked by the creditor and remains unpaid in full or part। मतलब इसको तोड़ तोड़ के समझिए, has executed a guarantee, रामलाल है, रामलाल ने गारंटी दी है, किसको दिया है? इन फेवर ऑफ ए क्रेडिटर, कोई क्रेडिटर है कंपनी का, क्रेडिटर है श्यामलाल, रामलाल ने श्यामलाल को गारंटी दी, कंपनी का नाम क्या है? XYZ लिमिटेड, ठीक है। XYZ ने कोई लोन लिया, रामलाल ने गारंटी दी। अब XYZ कब इसको पेमेंट नहीं कर रही श्यामलाल को, तो श्यामलाल क्या करेगा? जो रामलाल ने गारंटी दी वो ही वो करेगा। अब रामलाल की गारंटी भी अनपेड हो गई है ना, उसका भी पेमेंट नहीं हुआ, तो उस और फिर श्यामलाल ने क्या किया? श्यामलाल ने CIRP शुरू कर दी और उसकी एप्लीकेशन एडमिट भी हो गई, तो उस केस में क्या होगा? रामलाल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता। क्लियर है बात? Yes, sir. है ना। तो बेसिकली वो क्या कहना चाहते हैं कि भाई जो भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बने वो बढ़िया आदमी होना चाहिए, ऐसे तो नहीं ना कि वो किसी को गारंटी दे रहा है और गारंटी उसकी अनपेड हो रही है, तो ऐसे आदमी को तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनाना ठीक नहीं ना, है ना। इज सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू क्लॉजेस A to H अंडर एनी लॉ इन जुरिस्डिक्शन आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया में भी ये सब बातें जो हमने A to H बोली, क्या क्या? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट किसी दूसरे कंट्री में, विलफुल डिफॉल्टर किसी दूसरे कंट्री में, NPA अकाउंट किसी दूसरे कंट्री में, ठीक है, कन्विक्शन किसी दूसरे कंट्री में, डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज डायरेक्टर किसी दूसरे कंट्री में, प्रोहिबिशन जैसे यहां पर सेबी है, वहां सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है USA में, तो वहां से, ठीक है, या फिर कोई PUFE ट्रांजेक्शन और उसका रोल उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट, तो ये सब चीज, या फिर गारंटी कहीं फॉरेन कंट्री में दी, फॉरेन बैंकर को दी और वहां पर इन्वोक हो गई और अनपेड रही, तो ये सारी चीज ये बाहर भी अप्लाई, ठीक। तो बाहर भी कोई ऐसी डिसेबिलिटी है तो फिर भी ये बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके बाद हैज ए कनेक्टेड पर्सन नॉट एलिजिबल अंडर क्लॉजेस A to, या फिर उसका कोई कनेक्टेड पर्सन है जो कि नॉट एलिजिबल है अंडर क्लॉजेस A to। अब कनेक्टेड पर्सन कौन है? कनेक्टेड पर्सन वो है जो या तो प्रेजेंट प्रमोटर है या फिर फ्यूचर प्रमोटर है, प्रोस्पेक्टिव प्रमोटर है, ठीक है, या फिर होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और रिलेटेड पार्टी ऑफ ए पर्सन रेफर टू इन क्लॉजेस 1 and 2, ठीक है। तो सिर्फ इसमें 2 क्लॉजेस में ये थर्ड वाली कंडीशन लागू नहीं हो रही है, कौन से में? इंप्रिजनमेंट में और डिस्क्वालिफिकेशन में, बाकी में सारी ये कंडीशंस लागू, ठीक है। Provided that nothing in clause 3 of explanation 1 shall apply to a resolution applicant where such applicant is a financial entity and is not a related party of the corporate debtor, ठीक है। तो क्लॉज 3 कब अप्लाई नहीं होगी? अगर ये फाइनेंशियल एंटिटी है और इट इज नॉट ए रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एक्सप्रेशन रिलेटेड पार्टी shall not include a financial entity regulated by a financial sector regulator if it is a financial creditor of the corporate debtor and is a related party of the corporate debtor solely on account of conversion or substitution of debt into equity shares, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने पहले ही दे दिया, रिडीमेबल कन्वर्टिबल डिबेंचर्स थे प्रायर टू इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, अब वो कन्वर्ट हो गए इक्विटी शेयर्स में हो गए, उस वजह से रिलेटेड पार्टी बन गया, तो भी ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगी।
और फाइनेंशियल एंटिटी का क्या मतलब है ये यहाँ दे रखा है। बेसिकली कौन है इसमें? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 29A। अब हम चलते हैं सेक्शन 30। अब देखो आपने क्या किया, आप आईआरपी अपॉइंट हुए। अब ये पूरी कहानी बताओ एक बारी जरा मेरे को, कहां कहां से शुरू हुआ ये प्रोसेस। अब आप किसी को बंदे को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो अमरिंदर जी आप बता सकते हो ये पूरी कहानी समझाओ जरा, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। कोई आया है आपके पास, वो कहता है भाई क्या कर रहे हो, तो आप बताओ उसको भाई क्या क्या कहां कहां तक क्या क्या स्टोरी पढ़ लिया आपने अभी तक। सर कौन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लिए अप्लाई कर सकता है, डिफॉल्ट कितने अमाउंट का हो सकता है, हाँ कौन वेरी से गुड। प्रोसेस जा सकता है, कौन हम्म। से सेक्शंस में जाके हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये तो पहली चीज हो गई है ना। सबसे हाँ पहले तो एप्लीकेशन से पहले भी कुछ एक्टिविटी होगी क्या? हाँ जो जी सर, डिफॉल्ट होगा, डेट हाँ होगा, डिफॉल्ट होगा, तभी तो वो क्लेम, तभी तो हाँ प्रोसेस में जाएंगे ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं जो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो भी कोई कोई लिख करके देगा कुछ क्या एप्लीकेशन लगने से पहले? एप्लीकेशन से पहले क्या जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है उसका भी कुछ राइटिंग में कुछ कमिटमेंट होगा क्या किसी फॉर्म वगैरह के अंदर या नहीं? हाँ जी सर, वो डिमांड, सर वो ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में वो डिमांड नोटिस देगा ना, अंडर सेक्शन 8। हाँ अंडर सेक्शन 8 देगा, इधर फॉर्म 4 में जाएगा या फॉर्म 5 में जाएगा, अगर नोटिस के नहीं साथ। 3 या 4 है। हाँ जी सॉरी, 3 या हाँ 4 में, 3 हम्म। जाएगा डिमांड नोटिस और 4 में जाएगा तो पर वो तो इन्वॉइस। ऑपरेशनल क्रेडिटर खुद ही दे सकता है, उसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का होना जरूरी नहीं, वो तो ओसी देगा, खुद ही देगा। हाँ जी। फाइनेंशियल क्रेडिटर में कुछ होता है क्या ऐसा? रिटर्न कंसेंट सर, डबल हाँ एनी। रिटर्न कॉन्सेंट। तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी एप्लीकेशन लगाना चाहता है ना वो क्या होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल से टच में आता है। वो ओके। वो कह देता है देखो जी आप रिटर्न कॉन्सेंट दे दो, और रिटर्न कॉन्सेंट उस टाइम एप्लीकेशन एडमिट नहीं हुई होती है ना। तो वो कहता है अगर एप्लीकेशन एडमिट हो गई तो मैं आईआरपी बन जाऊंगा, ये बात लिखी होती है, और मैं अदरवाइज क्वालिफाइड हूँ, मेरे अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं चल रही। ठीक है जी। अच्छा बन गया, उसके बाद एप्लीकेशन एडमिट हो गई। एप्लीकेशन एडमिट होने के बाद भी विड्रॉ हो सकती है क्या? यस सर, हो सकती है। और एप्लीकेशन एडमिट होने से पहले विड्रॉ हो सकती है क्या? यस सर, अगर क्लेम उन्होंने पे कर यस दिया, सर। डिफॉल्ट का अमाउंट पेमेंट हो गया तो वो हो सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें वो कई बार रूल नंबर पूछ लेता है आपसे कि कौन से रूल नंबर में हो सकती है। सर ये टफ हो जाता है जहाँ पे रूल और सेक्शन का। रूल नंबर है, रूल नंबर 8, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा, विड्रॉवल रूल अकाउंट। नंबर 8 है एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स। अच्छा ये हो गया। ठीक है जी। अब हाँ एप्लीकेशन जी। एडमिट हो गई, एप्लीकेशन एडमिट होने के बाद भी विड्रॉ हो सकती है ना। यस, हो सकती है। अच्छा एप्लीकेशन होने के बाद अगर विड्रॉ करनी है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या करना पड़ेगा? भाई वो आया आपके पास, वो कहे भाई आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो, आप बताओ मेरे को, मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो क्या बताओगे आप कि भाई कैसे विड्रॉ करनी है? वो तो आपके ऊपर बेस्ड है ना। वो कहता है भाई आपको नॉलेज है आईपीसी की, आप बताओ। क्यों काजल जी? यस सर, अगर क्या? कमिटी ऑफ फॉर्म नहीं होगा तो सर आईआरपी विड्रॉ करेगा एप्लीकेंट के थ्रू। हाँ और सर 90% उसको चाहिए, इसमें तो 90% का नहीं है, अगर सबसे पहले कमिटी तो ऑफ। एप्लीकेंट को बोलेगा देखो भाई हमें को मेरे को एक रिटर्न रिक्वेस्ट दो, ठीक है। यस और सर, उस रिटर्न रिक्वेस्ट के कितने दिन के अंदर उसको एप्लीकेशन लगानी है फिर? 3 days में सर। 3 डेज के अंदर, हाँ ठीक है। और फिर उसके अगर साथ कुछ और भी लगाना है क्या? हम्म। क्या? यस सर। आ क्या बोल सर उसको, गारंटी। हाँ बैंक गारंटी लगानी है। बैंक भाई हाँ जो हाँ भी गारंटी हाँ। है। एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस एस्टिमेट हुए उसकी बैंक गारंटी भी साथ में इंटू लगानी है। कोर्स सर। पर सर आपने रूल बोला सर, नॉट रेगुलेशन सर। किसका? विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन का ये सर। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन में तो रूल ही तो है, रूल 8 है। रूल 8 विड्रॉल है। ऑफ एप्लीकेशन में पहली बात कर रहा था जब वो एडमिशन से पहले की बात कर रहा था। ओके यस सर, सर। फिर की बन देखो जाती है सर। ऐसा है ना, एडमिशन से पहले भी तो हो सकती है ना, आपने एप्लीकेशन लगा दी, आपको पेमेंट हो गई, अभी एप्लीकेशन एडमिट नहीं हुई,
तो मेरा क्वेश्चन ये था पहले कि क्या ये एडमिट होने से पहले भी विड्रॉ हो सकती है? आंसर इज यस। जो बाद वाला वो तो 12 में आ रहा है, एप्लीकेशन एडमिट होने के बाद तो 12 है, वो अलग चीज है। मेरा क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि अभी एप्लीकेशन एडमिट नहीं हुई है, आपने एप्लीकेशन फाइल की है सिर्फ, तो क्या उस स्टेज पर विड्रॉ कर सकते हो? आंसर इज यस, वो रूल 8 बोलता ओके सर। है ना। हम्म। चलिए, तो ये सब हो गया, क्लेम्स आ गए। क्लेम्स के बाद में आपने सीओसी बना ली। सीओसी बनाने के बाद में आपने क्या किया? सीओसी ने भी कुछ बता दिया, देखो भाई ये आपकी ये पावर्स हैं। कस्टडी एंड कंट्रोल हो गया, आपने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना लिया, और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाने के बाद में आपने सीओसी को भी वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दे दिया। अब उस बेसिस पे कुछ इसके पास प्लान्स आ गए, है ना। प्लान्स में यहाँ बहुत सारे रेगुलेशंस। अब हम सेक्शन 30 पढ़ते हैं। सेक्शन 30 बोलता है सबमिशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। ठीक है, इससे पहले ये देख लेगा कि भाई ये एलिजिबल है कि नहीं है ना, वो सब बातें तो चेक कर ही लेगा ये। नाउ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट में सबमिट ए रेजोल्यूशन प्लान along with an affidavit stating that he is eligible under 29A to the resolution personal prepared on the basis of the information memorandum। तो उसका बेसिस क्या है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है ना। द रेजोल्यूशन पर्सनल shall examine each resolution plan received by him to confirm that each resolution plan provides for the payment of insolvency resolution process cost। भाई सबसे पहले तो जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट है वो तो कम से कम होनी चाहिए ना, है ना। स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड इन प्रायोरिटी टू द पेमेंट ऑफ अदर डेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, चाहे सिक्योर्ड डेट हो अनसिक्योर्ड हो, उस सबसे पहले किसकी पेमेंट होनी है? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, तो रेजोल्यूशन प्लान ऐसा तो होना ही चाहिए जिसमें कम से कम इसकी पेमेंट की तो श्योरिटी हो। अगर ऐसा कोई प्लान है, मान लीजिए आपकी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट है 2 करोड़ रुपए की, और वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बोलता है भाई मैं तो 1.5 करोड़ रुपए दूंगा पूरी कंपनी की, तो वो रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें इसका प्रोविजन ही नहीं किया गया फॉर पेमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। ठीक है, दूसरा, प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। दूसरी क्या बात देखनी है? ये रेजोल्यूशन प्लान आ गए, मोटी मोटी ये बातें देखनी है, बाकी पूरा प्रोसीजर फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी क्या बात देखेगा ये कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है, क्योंकि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ने तो उसका तो रोल ही नहीं रहा नॉर्मली, सीओसी में तो वो बेचारे आए नहीं, है ना। चाहे उनका डेट 10% भी था तो भी आए तो वो बैठे रहे चुपचाप, है ना। तो उनको क्या श्योरिटी है? उसको कहता है भाई देखो क्या होता, या तो कंपनी का रेजोल्यूशन होता या लिक्विडेशन हो जाता, तो कम से कम उनको इतना तो कर दो कि उनको लिक्विडेशन वैल्यू मिल जाए। ठीक है, अब आप कहोगे भाई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को क्या पता कि लिक्विडेशन वैल्यू क्या है? उसको तो आपने भी लिक्विडेशन वैल्यू दी नहीं, उसको तो फेयर वैल्यू दी, और हो सकता है किसी किसी केस में फेयर वैल्यू भी ना दी हो, सीओसी ने मना कर दिया हो, तो इसको कैसे पता चलेगा? तो वो उसको अपना एक दिमाग लगाना है कि भैया मैं ज्यादा कम ना दूं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, क्योंकि अगर मैंने ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को लिक्विडेशन वैल्यू से कम प्रॉमिस कर दिया तो मेरा रेजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड टू सच क्रेडिटर्स if the amount to be distributed under the resolution plan had been distributed in accordance with the order of priority in subsection 1 of section 53। ठीक है, या तो लिक्विडेशन वैल्यू या जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता उतना, उनमें से जो भी हायर है उतना कम से कम इसको देना है। एंड प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ फाइनेंस, इसके अलावा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी हैं जिन्होंने फेवर में वोट नहीं किया, क्योंकि प्लान तो 66 पे पास हो गया, तो हो सकता है ना दूसरे 34 होंगे, या 80 पे पास हो तो 20 होंगे जो कि रेजोल्यूशन के फेवर में नहीं है, तो उनको क्या देना है? उनको भी कम से कम लिक्विडेशन वैल्यू तो मिल जानी चाहिए, क्योंकि अगर वो रेजोल्यूशन के फेवर में नहीं थे इसका मतलब वो लिक्विडेशन के फेवर में थे। तो जो प्लान है वो कम से कम उन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को भी कम से कम लिक्विडेशन वैल्यू तो दे दे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड
that distribution in accordance with the provisions of this clause shall be fair and equitable to such creditors. अब मान लीजिए ये प्रोविजन आया था 2019 में। अब कोई प्लान मान लीजिए कोई रिजेक्ट हो गया है ना, या अप्रूव नहीं हुआ, या अपील चल रही है, या लीगल प्रोसीडिंग है, तो उस केस में भी ये वाली क्लॉज आपको देखनी है। पहले ये नहीं था लिक्विडेशन वैल्यू वाला पंगा। ठीक है। दूसरा, जो प्लान आया है उसमें ये मैनेजमेंट के बारे में क्या लिखा है? प्रोवाइड्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द सीडी आफ्टर अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। ठीक है। इंप्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, क्योंकि रेजोल्यूशन प्लान क्या है? रेजोल्यूशन प्लान एक प्रॉमिस है, सेट ऑफ प्रोमिसेस है, भाई मैं ऐसे ऐसे करूंगा। ठीक है। तो जो उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, सुपरविजन कैसे होगा, उसके बारे में भी देना है उसको। डज नॉट कॉन्ट्रावीन एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, किसी लॉ का कॉन्ट्रावेंशन नहीं है। कंफर्म्स टू सच अदर रिक्वायरमेंट्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। ठीक है। और ये बेसिक बातें हैं। तो जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो ये देख लेगा कि भैया ये सारी बातें हो रही हैं कि नहीं, और फिर कमेटी को प्रेजेंट कर देगा ऐसे प्लान्स जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। फिर कमेटी क्या करेगी? 66% अप्रूवल से इसको पास कर देगी, और ये भी देख लेगी कि भाई ये फिजिबल या वायबल है या नहीं। फिर मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रपोज्ड which may take into account the order of priority, including the priority and value of security interest of a secured creditor and such other requirements as may be specified by the board. तो ये सारी बातें इसमें देख लेगी प्लान अप्रूवल के टाइम। ठीक है। ये 29A वाला है। 29A में क्या बोलता है कि बेसिकली इनको 30 डेज दे दिए जाएंगे फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ ओवरड्यू। उसके अलावा ये है कि ये जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, क्योंकि ये प्लान तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में ही डिस्कस होना है, तो जिस मीटिंग में उसका प्लान कंसिडर हो रहा है वो वाली वो मीटिंग अटेंड कर सकता है। ठीक है। लेकिन उसको नेचुरली राइट टू वोट तो नहीं होगा। राइट टू वोट तभी होगा अगर वो फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये भी मतलब है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर भी रेजोल्यूशन प्लान दे सकता है। ठीक है। और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल shall submit the resolution plan as approved by the committee of creditors to the adjudicating authority। ठीक है। तो जो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाएगा उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे दे। तो ये तो मोटी मोटी बातें। अब हम पढ़ लेते हैं रेगुलेशंस। ठीक है। रेगुलेशन 36B, 37, 38, 33, 34, 39 और 40। ठीक है। तो 36B से शुरू करते हैं। ये हमारा रेगुलेशन 36B। ठीक है। तो प्लान के लिए क्या है? सबसे पहले रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल विद इन 5 days ऑफ द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द फाइनल लिस्ट अंडर सब रेगुलेशन 12 ऑफ रेगुलेशन 36A। 36A हमने पढ़ लिया? नहीं, 36A नहीं पढ़ा। तो पहले 36A पढ़ते हैं। ठीक है। फिर 36B पढ़ेंगे। 36A क्या बोलता है? 36A बोलता है, अब आप समझ लीजिए जैसे शादी होती है, तो शादी होने में क्या होता है? सबसे पहले आप ऐड देते हो पेपर में। ऐड में क्या होता है? ब्रीफ पर्टिकुलर्स आप देते हो, है ना। तो ऐसे ही इस कंपनी के लिए आप नया कोई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट खोज रहे हो जो इस कंपनी का उद्धार कर सके। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? फॉर्म G पब्लिश करो। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल पब्लिश brief particulars of the invitation for expression of interest in Form G of the schedule at the earliest, not later than 60th day from the insolvency commencement date। तो 60 दिन के अंदर, अभी देखो एक तरफ ये अपना इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तैयार कर रहा है। इंफॉर्मेशन 95 मेमोरेंडम कितने दिन में देना है इसने? 95। 5 अब यहां क्या कर रहा है ये 60 डेज में इसको पब्लिश करना है फॉर्म G। ठीक है। Not later than 60th day from the insolvency commencement date from interested and eligible prospective resolution applicants to submit resolution plans। ठीक है। Clarification: The resolution professional
after the approval of the committee, may invite a resolution plan for each real estate project or group of projects of the corporate return. तो ऐसा भी कर सकता है, जैसे एक कंपनी के 4 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैं तो प्रोजेक्ट वाइज भी आप ले सकते हो या ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स वाइज भी ले सकते हो, ठीक है। तो फॉर्म जी में क्या कहेगा कि भैया आप रेजोल्यूशन प्लान दो, ठीक है। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल पब्लिश, और फॉर्म जी का दर्शन कर लेते हैं। ये फॉर्म जी क्या है, ऐसा होता है फॉर्म जी, ये है फॉर्म जी। फॉर्म जी है इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसमें बेसिकली क्या रहेगा, एक तो कुछ कुछ ब्रीफ पर्टिकुलर्स रहेंगे, और फिर ये रहेगा कि भैया कंपनी की वेबसाइट है, कंपनी का एड्रेस है, जहां मेजॉरिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लोकेटेड है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है ना, और फर्दर डिटेल्स कहां पर मिलेंगी वो भी बता देगा। ये उसका यूआरएल दे देगा कि भाई फर्दर लिस्ट जो है, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, शेड्यूल्स, वो सारी चीजें आप यहाँ इस यूआरएल पर ले लो। एलिजिबिलिटी फॉर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, उसका यूआरएल दे देगा, है ना। तो बेसिक बेसिक बातें यहां पर दे देगा और बता देगा भैया और डिटेल्स आपको यूआरएल पर मिल जाएगी। ये हमारा फॉर्म जी। ठीक है जी, यहां आ गए हम। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और ये फॉर्म जी कहां पब्लिश करना है, ये यहां पब्लिश करना, पेपर में पब्लिश करेंगे नेचुरली, ठीक है। एक इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर विद सर्कुलेशन। वेबसाइट पर, ऑन द वेबसाइट इफ एनी डेजिग्नेटेड बाय द बोर्ड इन एनी अदर मैनर एज मे बी डिसाइडेड बाय द कमिटी। फॉर्म जी में क्या रहेगा, फॉर्म जी एक किस्म से, जैसे आप शादी के लिए अगर मैट्रिमोनी ऐड देते हो तो उसमें सारी बातें तो नहीं लिख देते ना, आप कह देते हो भाई इसके लिए बाकी चीजों के लिए ये मोबाइल नंबर है या ये ईमेल आईडी या पोस्ट बॉक्स नंबर है, वहां पर कांटेक्ट करो। इसी तरह से यहां पर ये क्या कहेगा, ये कहेगा भाई डिटेल्स कहां पर मिलेंगी, ठीक है। तो फॉर्म जी ऑफ द शेड्यूल shall state where the detailed invitation for expression of interest can be downloaded or obtained from as the case may be, and provide the last date for submission of expression of interest which shall not be less than 15 days from the date of issue of detailed invitation, ठीक है। 15 दिन कहां से है, ये 15 दिन फॉर्म जी से नहीं है, 15 दिन है फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिटेल्ड इन्विटेशन। ये इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है। ये ठीक, चलिए। द डिटेल्ड इन्विटेशन में क्या रहेगा, फॉर्म जी का फॉर्मेट तो हमने देख लिया। अभी डिटेल्ड इन्विटेशन का कोई फॉर्मेट है क्या, नहीं, हर चीज का फॉर्मेट नहीं दे सकते यहां पर, है ना। तो इन्होंने फॉर्म जी ब्रीफ पर्टिकुलर्स का फॉर्मेट दे दिया, बाकी दे दिया भैया देखो यहां से मिल जाएगा। डिटेल्ड इन्विटेशन में क्या रहेगा, पहला तो क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमने कहां देखा था, सेक्शन 25(2)(h) में। 25(2)(h) क्या बोलता है, 25(2)(h) बोलता है कि आरपी इन कंसल्टेशन विद द सीओसी शैल डिवाइस ए क्राइटेरिया, मतलब सीओसी बेसिकली क्राइटेरिया स्पेसिफाई करे। तो यहां पर क्राइटेरिया रहेगा, जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर का मैच डॉक्टर से ही होगा ना, मैकेनिक से तो नहीं हो सकता, इसीलिए यहां पर लिख देगा ये भाई 1000 करोड़ की कंपनी है, तो हमारा जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो भी 1000 करोड़ की नेटवर्थ वाले होने चाहिए या 100 करोड़ की टर्नओवर होनी चाहिए। इस तरह से कोई क्राइटेरिया दे देगा जो कि मैच करता हो, ताकि उस कंपनी को वो संभाल सके, ठीक है। स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स as approved by the committee in accordance with clause H of subsection 2 of section 25। उसके बाद में ineligibility norms 29 हमने पढ़ लिया, है ना, to the extent applicable for prospective resolution applicants। अब ये to the extent applicable क्यों लिखा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई एमएसएमई कंपनी हो। अगर एमएसएमई कंपनी है तो फिर उसमें 29A का क्लॉज सी और क्लॉज एच एप्लीकेबल नहीं है।
ये बात कहाँ लिखी है? सेक्शन 240 कैपिटल ए में। ठीक है, तो सेक्शन 240 कैपिटल ए बोलता है कि बाकी में सारे चीजें देखो, लेकिन क्लॉज सी और एच मत देखो अगर एमएसएमई की सीआईआरपी है। ठीक है, इसीलिए लिख दिया टू द एक्सटेंट एप्लीकेबल, अदरवाइज लिखने की जरूरत ही नहीं थी। प्रोवाइड सच बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉर्पोरेट डेटा एज में बी रिक्वायर्ड बाई ए प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना सीडी के बारे में। नॉट रिक्वायर पेमेंट ऑफ एनी फी और एनी नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट फॉर सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसके लिए आप कोई फीस नहीं चार्ज कर सकते, कोई नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट नहीं चार्ज कर सकते, लेकिन आप रिफंडेबल डिपॉजिट चार्ज कर सकते, ताकि ऐसा नहीं कि कोई लोग वैसे ही बिना बात के आपसे मांगते रहे डिटेल्स, है ना। तो नॉन सीरियस को तो भी आपको थोड़ा यू हैव टू कीप देम एट बे ना, तो इसीलिए रिफंडेबल डिपॉजिट यू कैन आस्क फॉर बट नॉट नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, क्योंकि बेसिक आइडिया क्या है कि मैक्सिमम लोग आए, है ना, लेकिन नॉन सीरियस ना आए, इसके लिए आप कह सकते हो कि भाई रिफंडेबल डिपॉजिट दो। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटास रजिस्ट्रेशन स्टेटस सच एज एमएसएमई। तो एमएसएमई का भी जो स्टेटस है ये भी इसको डिटेल्स देनी है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कॉर्पोरेट डेटा एज एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब अगर जो सीडी है उसका कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, तो द कमिटी फॉर एन एसोसिएशन ऑफ ग्रुप ऑफ अलॉटीज in such real estate project representing not less than 10% or 100 creditors out of the total number of creditors in a class whichever is lower may relax the following। कई बार क्या होता है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जो एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज है या ग्रुप ऑफ अलॉटीज है वो कह देते हैं हम ही बना देंगे इस प्रोजेक्ट को, हम ही रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन जाते हैं। तो अगर वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है तो उस केस में जो कुछ रिलैक्सेशन हो सकती है। क्या रिलैक्सेशन हो सकती है? पहला तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड इन क्लॉज ए। जो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया उसके अंदर कोई रिलैक्सेशन हो सकती है, या फिर कंडीशंस रिगार्डिंग दी रिफंडेबल डिपॉजिट। भाई दूसरों से आप रिफंडेबल डिपॉजिट ले सकते हो सकता है इससे और कम कर दो रिफंडेबल डिपॉजिट। बाकियों को बोल रहे हो 10 लाख का रिफंडेबल डिपॉजिट दो, इसको बोलोगे 50,000 का दे दो या 1 लाख का दे दो, है ना। क्यों? क्योंकि वो उस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए उनको ये दो चीजों में रिलैक्सेशन आप दे सकते। अच्छा, मान लीजिए आपने इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक बार इशू कर दिया। ठीक है, एनी मॉडिफिकेशन इन द इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मे बी मेड इन द मैनर एज द इनिशियल इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वाज मेड। मतलब फॉर्म जी आपको दोबारा इशू करना तो कर सकते हो, provided that such modification shall not be made more than once। ठीक है, a prospective resolution applicant who meets the requirement of the invitation for expression of interest। अब इसने ऐड देखा पेपर में, फॉर्म जी देखा, फॉर्म जी देख करके इसने डिटेल्ड ले लिया वहां से, है ना, डिटेल्स ले लिया कंपनी का, और 15 दिन के अंदर इसने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर दिया। ठीक है, a prospective resolution applicant who meets the requirement of the invitation for expression of interest may submit expression of interest within the time specified in the invitation under clause B of subregulation 3। ठीक है, तो टाइम स्पेसिफाइड क्या है? क्लॉज बी ऑफ सबरेगुलेशन 3 15 days। ठीक है, the expression of interest received after the time specified shall be rejected। ठीक है, तो वो जो टाइम है अगर उसके बाद में कोई आता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो उसको रिजेक्ट कर दी। और उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शैल बी अनकंडीशनल, उसमें कंडीशन नहीं लगा सकते। और उसके साथ में क्या देना है? पहला, एक तो अंडरटेकिंग देनी है बाय द प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट दैट इट मीट्स द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द कमिटी अंडर क्लॉज एच ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 25। तो सीओसी डिसाइड कर सकती है क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया क्या होगा? टर्नओवर का क्राइटेरिया हो सकता है, नेटवर्थ का क्राइटेरिया हो सकता है, पुराना एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में वो फिर रेलेवेंट रिकॉर्ड्स भी देगा इन एविडेंस ऑफ मीटिंग द क्राइटेरिया। फिर अंडरटेकिंग बाय द प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट दैट इट डज नॉट सफर फ्रॉम एनी इनएलिजिबिलिटी अंडर 29E टू द एक्सटेंट एप्लीकेबल। ठीक है, फिर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स टू इनेबल एन असेसमेंट ऑफ इनएलिजिबिलिटी अंडर क्लॉज C, and undertaking by the prospective resolution applicant that it shall intimate the resolution personal forthwith
if it becomes ineligible at any time during the CIRP process. मतलब अभी तो इनएलिजिबल नहीं है, मान लो बाद में इनएलिजिबल हो जाए, बाद में कोई गारंटी दे रखी थी वो इन्वोक हो जाए, किसी दूसरी कंपनी की CIRP हो जाए, तो फिर भी ये बताएगा। ठीक है। An undertaking by the prospective resolution applicant that every information and records provided in expression of interest is true and correct, and discovery of any false information or record at any time will render the applicant ineligible to submit the resolution plan, forfeit any refundable deposit, and attract penal action under the। ठीक है, वो कहता है भाई जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं ये ट्रू एंड करेक्ट है, और अगर कोई भी गलत पाया गया तो क्या होगा, मेरी अगर कोई रिफंडेबल डिपॉजिट है उसको फॉरफिट कर लेना और पेनल एक्शन भी कर सकते हो। उसके बाद अंडरटेकिंग बाय द प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट टू द इफेक्ट दैट इट शैल मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड शैल नॉट यूज सच इंफॉर्मेशन टू कॉज एन अनड्यू गेन और अनड्यू लॉस टू इट्स। देखो कंपनी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी इनको, है ना, तो उसको वो अनड्यू पर्पस के लिए यूज ना करें, और इसकी अंडरटेकिंग इसको देनी। द रेजोल्यूशन पर्सनल, अब आप पूछोगे इन सबके फॉर्मेट्स हैं क्या? IBC फॉर्मेट्स नहीं देता, वो कहता है कि अपना दिमाग लगाओ, अपने हिसाब से कंपनी के हिसाब से ये बनाओ। ठीक है, तो आप IRP RP बन जाते हो, तो ये सारी चीजें आप पर आपसे तो मांगेंगे, लाओ भाई दो, है ना। The resolution personnel shall conduct due diligence based on the material on record in order to satisfy that the prospective resolution applicant complies with the provisions of clause H of subsection 2 of section 25। अब देखो उसने तो अपना रिकॉर्ड दे दिया, उसने अंडरटेकिंग दे दी, एफिडेविट दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि खाली एफिडेविट से, इसको भी तो RP को भी तो चेक करना है ना। RP को क्या चेक करना है? 25(2)H वाला क्राइटेरिया मीट करता है कि नहीं, 29A वाले क्राइटेरिया मीट करता है कि नहीं, अदर रिक्वायरमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब आप कहोगे ये RP कैसे करेगा? इसके लिए ड्यू डिलिजेंस एजेंसीज होती हैं जो इंडिया में नहीं बाहर भी चेक कर देती हैं कि 29A में एलिजिबल है या नहीं है, क्या है। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल may seek any clarification or additional information or document from the prospective resolution applicant for conducting due diligence। तो ड्यू डिलिजेंस के लिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट चाहिए तो ये उससे मांग लेगा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से। ठीक है, अब उसके बाद में ये क्या करेगा, ये एक प्रोविजनल लिस्ट इशू करेगा ऑफ एलिजिबल प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। देखो 60 दिन के अंदर इसने क्या किया था, फॉर्म जी इशू किया था, 15 दिन के अंदर उन्होंने डिटेल्स देनी थी, है ना, और 15 दिन के बाद 75 दिन हो गए, 75 के बाद 10 दिन के अंदर ये क्या कर रहा है, ये प्रोविजनल लिस्ट इशू कर रहा है ऑफ एलिजिबल प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स विद इन 10 days ऑफ द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड टू ऑल प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हु सबमिटेड द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रोविजनल लिस्ट किसको दे रहा है? कमेटी को भी दे रहा है, और जो भी प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हैं उनको भी ये लिस्ट दे रहा है। अब मान लो किसी को ऑब्जेक्शन है उसमें, तो ऑब्जेक्शन 5 दिन के अंदर एंटरटेन करें। Any objection to inclusion or exclusion of a prospective resolution applicant in the provisional list may be made with supporting documents within 5 days from the date of issue of the provisional list. So 60 plus 15, 75, 75 plus 10, 85, 85 plus 5, 90. ठीक है, on considering the objections received, the resolution personnel shall issue the final list of prospective resolution applicants within 10 days of the last date for receipt of objections। हो गए 100। ठीक है, अब सारी चीजें हो गई, उसने भी डॉक्यूमेंट दे दिए, इसने भी वेरीफाई कर लिया, ऑब्जेक्शंस आए वो भी हो गए सारे। अब रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान, अब इस स्टेज पर इनको ये इंफॉर्मेशन देगा। अभी तक इसने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम शेयर नहीं किया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सिर्फ कमेटी मेंबर्स को मिला है 95 तक, और यहां पहुंच चुके हैं हमारे 100 डेज। अब ये RFRP। ठीक है, द रेजोल्यूशन पर्सनल शैल विद इन 5 days ऑफ द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द फाइनल लिस्ट इशू द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इवेल्यूशन मैट्रिक्स एंड अ रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान्स टू एवरी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इन द फाइनल लिस्ट। ठीक है, तो 105 दिन हो गए। क्या इशू कर रहा है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इवेल्युएशन मैट्रिक्स एंड अ रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान्स। ये इवेल्युएशन मैट्रिक्स क्या है? इवेल्युएशन मैट्रिक्स
एक मैट्रिक्स होता है जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। मैं शेयर क्वालिफाइंग कर दूंगा, क्राइटेरिया, हाँ मैं शेयर कर दूंगा फॉर्मेट उसका, ठीक है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सर। हाँ, provided that where such documents are available, the same may also be provided to every prospective resolution applicant in the provisional list, ठीक है। और रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान्स, इसमें क्या रहेगा? इट शैल डिटेल ईच स्टेप इन द प्रोसेस एंड द मैनर एंड पर्पस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड द प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अलॉन्ग विद कॉरस्पॉन्डिंग टाइमलाइंस, ठीक है। और इसमें आपको 30 दिन का टाइम देगा टू सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान। हो गए 135 दिन, ठीक है। द रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान्स shall not require any non-refundable deposit for submission of or along with the resolution plan, ठीक है। तो RFRP में भी आपको कोई नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट नहीं लेनी, रिफंडेबल डिपॉजिट आप ले सकते। द रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान्स shall require the resolution applicant। अब ये जो रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान आप देते हो उसमें कहते हो देखो भाई आप प्लान तो दे रहे हो, अगर मान लो आपका प्लान अप्रूव हो गया है ना, तो क्या गारंटी है कि आप उसको फुलफिल करोगे? तो आप हमें परफॉर्मेंस सिक्योरिटी दे दो इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी, ठीक है। और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आपको अभी नहीं देनी है, कब देनी है? विद इन द टाइम स्पेसिफाइड देयरइन, एंड सच परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शैल स्टैंड फॉरफिटेड इफ द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ऑफ सच प्लान आफ्टर इट्स अप्रूवल बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मान लो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने तो अप्रूव कर दिया लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, तो वो फिर हम वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को फॉरफिट कर लें, ठीक है। लेकिन इसमें भी अगर एसोसिएशन ने कोई प्लान दिया है या ग्रुप ऑफ अलॉटीज ने प्लान दिया है नॉट लेस देन 10% और 100, तो उस केस में ये रिलैक्स कर सकते हैं रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड फॉर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, ठीक है। और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या है? ये बेसिकली इट इज इन द नेचर ऑफ ए बैंक गारंटी। और अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी है आपने इन द रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान और द इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, it shall be decided to be a fresh issue and be subject to timelines under sub-regulation 3, ठीक है, provided that such modification shall not be made more than once. The resolution professional may, with the approval of the committee, extend the timeline for submission of resolution plans, ठीक। If the resolution professional does not receive a resolution plan इन रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट, मान लीजिए आया ही नहीं, कोई प्लान ही नहीं आया है ना, तो क्या करेगा? ही में विद द अप्रूवल ऑफ द कमिटी इशू रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान फॉर सेल ऑफ वन और मोर ऑफ एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। तो ऐसा कह सकता है भाई देखो पूरी कंपनी का तो प्लान आ नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, हम प्लान मांग सकते हैं फॉर सेल ऑफ वन और मोर ऑफ एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल may with the approval of the committee reissue request for resolution plans if the resolution plans received in response to an earlier request are not satisfactory। तो आए तो सही रेजोल्यूशन प्लान्स लेकिन वो बढ़िया नहीं लगे, तो क्या कर सकते हैं? री इश्यू कर सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान, लेकिन उसके लिए सीओसी का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द रिक्वेस्ट इज मेड टू ऑल प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स इन द फाइनल लिस्ट, प्रोवाइडेड दैट provisions of sub-regulation 3 shall not apply for submission of resolution plans under this sub-regulation। मतलब ये कि सब-रेगुलेशन 3 में क्या टाइम लिमिट दी थी? यहाँ पर 30 दिन दी थी, है ना, तो ये 30 दिन उस केस में अप्लाई नहीं हो, मतलब ये कि उसमें कम दिन में भी हो सकता है। 36C स्ट्रेटेजी फॉर मार्केटिंग ऑफ एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल shall prepare a strategy for marketing of the assets of the corporate debtor in consultation with the committee where the total assets as per the last available financial statements exceed 100 crore rupees and may prepare such strategy in other cases, ठीक है। तो अगर टोटल एसेट्स है जो लास्ट अवेलेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें इफ दे एक्सीड 100 करोड़ रुपीस, तो फिर क्या कर सकता है? ये एक स्ट्रेटेजी बना सकता है फॉर मार्केटिंग ऑफ एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा इन कंसल्टेशन विद द कमिटी। और दूसरे केसेस में ये ऑप्शनल है, ठीक है। डिसीजन ऑफ इंप्लीमेंटिंग सच स्ट्रेटेजी अलोंग विद इट्स कॉस्ट शैल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कमिटी
and members of the committee may also take measures for marketing of the assets of the corporate debtor. देखो भाई, ऐसा है कि आपको रेजोल्यूशन एप्लीकेंट तो ढूंढना है, रेजोल्यूशन प्लान आ जाए या फिर आप मार्केटिंग ऑफ एसेट्स के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका रेजोल्यूशन प्लान। अब रेजोल्यूशन प्लान में क्या हो, ये रेजोल्यूशन प्लान में कुछ भी कह सकता है। A resolution plan shall provide for the measures as may be necessary for insolvency resolution of the corporate debtor, for maximization of value of its assets, including but not limited to। ये सारी चीजें वो कर सकता है। वो कह सकता है मेरे पास एक कंपनी है, मैं उसी कंपनी में इसको मर्ज कर दूंगा, है ना। मैं क्या करूंगा, मैं कुछ कैंसिल कर दूंगा शेयर्स, कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट को मैं सेटिस्फाई कर दूंगा या मॉडिफाई कर दूंगा, जो आपने टर्म्स जिस पर लोन ले रखा है मैं उसको रिस्ट्रक्चर करूंगा, रिडक्शन हेयर कट में दूंगा। इस तरह से ये बहुत सारी बातें इसमें कह सकता है, ठीक है। बेसिकली मैं टेक्नोलॉजी में चेंज कर दूंगा, पोर्टफोलियो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैं उस कंपनी को अपने हिसाब से चलाऊंगा ना, है ना। तो उस कंपनी को चलाने के लिए जो जो चीजें होंगी मैं वो करूंगा। मैंडेटरी कंटेंट्स, क्या क्या मैंडेटरी कंटेंट्स होने चाहिए of the resolution plan? The amount payable under a resolution plan to the operational creditors shall be paid in priority over financial creditor। ये रेजोल्यूशन प्लान में क्या बताएगा कि मैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को पहले पैसे दूंगा ओवर फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब प्लीज नोट करिए, ये सब एक विजुअलाइजेशन है, दे कुछ नहीं रहा किसी को अभी, वो प्लान में ये बता रहा है कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ठीक है। ये तो जब प्लान इंप्लीमेंट होगा तब होगी पेमेंट, अभी कुछ नहीं पेमेंट हो रही, है ना। द अमाउंट पेबल अंडर रेजोल्यूशन प्लान टू द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स shall be paid in priority over financial creditors, and to the financial creditors who have a right to vote and did not vote in favor shall be paid in priority over financial creditors who voted in favor। मतलब दो को प्रायोरिटी मिलेगी, सबसे पहले किसको मिलेगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को, उसके बाद में फाइनेंशियल क्रेडिटर जो डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनको, ठीक है। फिर रेजोल्यूशन प्लान में एक स्टेटमेंट देगा क्या कि एज टू हाउ इट हैज डेल्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, ठीक है। A resolution plan shall include a statement giving details if the resolution applicant or any of its related parties। मतलब इसमें यह भी स्टेटमेंट देगा कि देखो जी ऐसा है कि मैंने पहले भी कोई रेजोल्यूशन प्लान दिया था, ठीक है, और उसमें मैं फेल हो गया था, तो उसके बारे में भी डिटेल इसको देनी है। A resolution plan shall include a statement giving details if the resolution applicant or any of its related parties has failed to implement or contributed to the failure of implementation of any other resolution plan approved by the adjudicating authority at any time in the past, ठीक है। A resolution plan shall provide the terms of the plan and its implementation schedule, कि भैया देखो मैं कंपनी को दोबारा ट्रैक पे ले आऊंगा 6 महीने, साल, 2 साल में। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा ड्यूरिंग इट्स टर्म, तो उस दौरान में मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कौन करेगा, या फिर एडिक्वेट मींस ऑफ सुपरवाइजिंग इट्स इंप्लीमेंटेशन। प्रोवाइड फॉर द मैनर, जो पीयूएफई ट्रांजैक्शंस का क्या होगा, ठीक है, और उससे अगर कोई रिकवरी होगी तो वो रिकवरी का क्या होगा, ये सब बातें रेजोल्यूशन प्लान में बताएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई to any resolution plan that is admitted to the adjudicating authority under subsection 6 of section 30 on or before the date of commencement of this, ठीक है। तो ये वाली क्लॉज जो है ये अप्लाई नहीं होगी अगर आपने ये जो डेट ऑफ कमेंसमेंट उससे पहले आपने प्लान सबमिट किया, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स आती ना टाइम टू टाइम, तो नेचुरली फिर रिट्रोस्पेक्टिव तो नहीं हो सकती ना, ये मतलब। उसके बाद ए रेजोल्यूशन प्लान शेल डेमोन्स्ट्रेट दैट इट एड्रेसेस द कॉज ऑफ डिफॉल्ट। भाई डिफॉल्ट भी किसी वजह से हुआ था ना, डिफॉल्ट मतलब मान लो वर्किंग कैपिटल गैप है, तो उस चीज को इसने कैसे एड्रेस किया ये भी बात बताएगा। इट इज फिजिबल एंड वायबल, इट हैज प्रोविजन फॉर इट्स इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, इट हैज प्रोविजन फॉर अप्रूवल्स रिक्वायर्ड एंड द टाइमलाइंस फॉर द सेम,
ठीक है, कई बार होता है कोई अप्रूवल चाहिए होती है, तो उसकी टाइमलाइंस क्या है, एंड द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हैज द कैपेबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द रेजोल्यूशन प्लान। ठीक है, द कमिटी शैल कंसिडर सेटिंग अप ए मॉनिटरिंग कमिटी फॉर मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। और मॉनिटरिंग कमेटी में कौन रहेगा, मॉनिटरिंग कमेटी में रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कमेटी, आरपी रहेगा, है ना, और रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। और अगर मान लो आरपी को पार्ट ऑफ कमेटी बनाया जाता है, तो जो मंथली फीस है, ये जो सीआईआरपी में फीस मिल रही थी उससे ज्यादा फीस नहीं मिलेगी उसको। ठीक है, द मॉनिटरिंग कमेटी शैल सबमिट क्वार्टरली रिपोर्ट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी regarding the status of implementation of the resolution plan. Approval of resolution. A prospective resolution applicant in the final, बस ये लास्ट कर लेते हैं, है ना। A prospective resolution applicant in the final list may submit resolution plan or plans prepared in accordance with the code and these regulations to the resolution professional electronically within the time given in the request for resolution plans under regulation 36B। ठीक है, जो भी फाइनल लिस्ट में आया है वो प्लान या प्लान्स सबमिट करेगा। ठीक है, और उसके साथ में एफिडेविट देगा रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, फिर अंडरटेकिंग कि भैया देखो ऐसा है, ये सारा ट्रू एंड करेक्ट है ना, और अगर कुछ गलती पाई जाए तो मेरी रिफंडेबल डिपॉजिट आप फॉरफिट कर लेना, penal action. The resolution professional may, if envisaged in the request for resolution plan, allow modification of the resolution plans received under sub-regulation, but not more than once. तो resolution plan आ गया, उसमें modification भी allow कर सकते हैं. Use a challenge mechanism to enable resolution applicants to improve their plans. ठीक है. The committee shall not consider any resolution plan received after the time specified. ठीक है, तो इसमें तो पहली बात तो ये है कि अगर डेट लेट आया कोई प्लान तो फिर उसको कंसिडर नहीं करते। ठीक है, या जिसका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं है, या इट डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 30 एंड सब रेगुलेशन 1। ठीक है, the resolution professional shall submit to the committee all resolution plans which comply with the requirements of the code and regulations made thereunder, along with the details of the following transactions if any observed, found or determined by him। तो पीयूएफई ट्रांजैक्शन ये सारे ये चीजें सीओसी के सामने प्रेजेंट करेगा। एंड द ऑर्डर्स इफ एनी, कमेटी क्या करेगी, सारे रेजोल्यूशन प्लान्स को इवेल्युएट करेगी एज पर इवेल्युएशन मैट्रिक्स, और फिर रिकॉर्ड इट्स डेलिब्रेशंस ऑन द फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ ईच रेजोल्यूशन प्लान एंड वोट ऑन ऑल रेजोल्यूशन प्लान्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, और अगर कोई भी प्लान अगर उसको रिक्विजिट वोट मिल जाते हैं तो इट शैल बी डीम्ड एज अप्रूव्ड। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हर एक प्लान को ना एक स्कोर दे देते हैं। अगर ये एग्जांपल भी दिया है कि अगर प्लान ए का स्कोर 55 है और प्लान बी का स्कोर 60 है तो कोई भी प्लान अप्रूव नहीं है ना, क्योंकि इसमें 60% वोट ही मिला, 66 मिलना चाहिए था। प्लान ए को वोट मिल गए 70%, प्लान बी को मिल गए 75%, तो प्लान बी अप्रूव हो गया। और अगर दोनों ही हो गए तो फिर टाई ब्रेकर फॉर्मूला पहले से ही अनाउंस कर देते हैं बिफोर वोटिंग कि अगर दो प्लान्स को एक जैसी परसेंटेज मिल जाए तो फिर टाई ब्रेकर फॉर्मूला क्या रहेगा। ठीक है, तो इतना ही आज की कथा यही समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में करेंगे।